الرحمن الرحیم۔ سنگلاخ پہاڑوں اور گنگناتے ندیوں کی سرزمین کولو سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ اور عوام پروگرام۔ آپ اور عوام کولو کا واحد اور منفرد پروگرام ہوگا جس میں ہم علاقائی صورتحال، علاقے میں مسائل اور ان کا حل اور اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں علی احمد کور، میرے ساتھ دے رہے ہیں پروگرام میں اینکر پرسن میر محمد اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں عبدالواحد۔ ناظرین، یہ پروگرام خاص کر ہم نے کولو کے عوام کے لیے، طلباء کے لیے، صحت اور دوسرے تمام معاملات پر ڈسکشن کے لیے رکھا ہے، جو کہ ہر اتوار کو نشر ہوگی۔ آپ اس پروگرام کو اور دیکھ سکیں گے دوسرے اہم سیٹلائٹ چینلوں پہ۔ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں مہمانوں کا میں تعارف کرتا چلوں۔ ہیڈرو یونین سے جو چیئرمین ہیں صوبدار مری صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کا ساتھ دیں گے جناب بنگڑ خان مری صاحب، یہ لینڈ سپریڈنٹ ہیں، اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں نصر اللہ خان مری صاحب۔ اسی طرح ہم نے عوامی نمائندے بھی اپنے ساتھ بلائے ہیں جو کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں جناب محمد جان مری صاحب، یہ جنرل سیکریٹری ہیں سپورٹس کے، اور مایا ناز کھلاڑی ہیں، اور مختلف حوالوں سے کولو کے درپیش مسائل سے بخوبی آگے۔ ان کا ساتھ دے رہے ہیں جناب ملک محمد اکبر اور ریاضی صاحب، یہ معتبرین ہیں، معززین ہیں، اور علاقے کے حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں شاعر محمد میر، جو کہ شاعر ہیں اور رائٹر ہیں، مصنف ہیں، لکھتے ہیں کتاب، اور علاقے کی صورتحال سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے جو ہیڈرو یونین کے چیئرمین ہیں، ان کا مسلسل یہ تیسرا ٹینیور ہے جو منتخب ہو رہے ہیں اپنے پینل کی طرف سے۔ ان سے یہ سوال ہے کہ سر، اب تک آپ نے کیا جو ہے نا اپنے دوستوں کے لیے کر چکے ہیں؟ مزید آپ کے کیا ویژن ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے لیے جو وابڈا کے دوست ہیں اور جس سے عوام کو بہتری ہو سکتی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یونین کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، ہمارے جو یونین ہیڈرو یونین ہے بڑی مضبوط یونین ہے، خاص کر وفاقی لیول پہ اور صوبائی لیول پہ۔ جو صوبائی حاجی رمضان بڑے اچھے اور ایماندار یونین لیڈر ہیں، اس کے حوالے سے اب باقی محکموں میں جاؤ، میرے خیال ہے پینشن کے لیے بھی لوگ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، کوئی ڈیتھ کیس ہوتا ہے وہ تو ان کا ہوتا ہی نہیں ہے، اور کئی مسائل ہیں۔ شکر الحمدللہ ہمارا وابڈا ہے، ہیڈرو یونین ہے، کہ آج تک کسی پنشنر کو کوئٹہ تک بھی جانا نہیں پڑا۔ وہ ادھر سے جو کاغذ ہیں اپنا بھجوا دیں گے تو اس کا پنشن گھر بیٹھے مل جاتا ہے۔ دوسرا ہے ہمارے ڈیتھ کیس ہوئے ہیں کافی، جو کہ طارق اقبال 20 سال بعد، اس کا والد کے فوت ہونے کے 20 سال بعد اس کو پوسٹ ملا ہے۔ اور بارکان میں حاجی میر جان کا بیٹا میر خان، اور رکنی میں حبیب اللہ کا بھائی، ایسے کئی ہمارے جو کیسز تھے۔ یہ تو میں خاص کر ضلع لیول پہ بتا رہا ہوں، سب ڈویژن لیول پہ جسے ایٹ کے لولا ہے، دوسرے ہمارے بڑی زبردست یونین ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے بھی مخلصانہ دوستوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے کام کیا، تو ہم لوگوں میرا خاص کر 17-18 سال یونین میں ہوا ہے، ہر 2 سال کے بعد ہمارا پیریڈ ہوتا ہے، تو شکر الحمدللہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ باقی رہا آپ نے عوام کے حوالے سے پوچھا، تو ہمیں خاص کر سب ڈویژن کولو میں جو ہمارا گریڈ بنا ہے، فرسٹ پہ گریڈ 10-13 کا ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، اس کو 20-26 ہو رہا تھا اس ٹائم۔ ہمارے اگر یہ 20-26 ہوتا، کم سے کم ہر فیڈر والے کو یعنی شام کے ٹائم، رات وقت کے ٹائم ہر ایک کو بجلی ملتی، لیکن اس کی چھوٹے ہونے کی وجہ سے تو ہمیں اس کی بھی درپیش ہے مسائل۔ اور خاص کر اس ٹائم سٹی جو ہمارا اوور لوڈ ہے، اس کی کیپیسٹی جو ہے ہمارے پاس 400 ہے، لیکن عوام جو اس ٹائم بجلی مانگتا ہے 600 سے 700 روپے۔ تو اگر عوام ہمارے ساتھ تعاون کرے، جو ایکسٹرا برقی آلات ہیں ان کو بند کرے، ایکسٹرا جو ہے ان کو نہیں چلائے جائے، بلب ہو یا گیزر کے صورت میں ہو، تو ہمارے بجلی پہ کافی اثر پڑے گی۔ اور دوسرے ہمارے لائنیں بہت دور دور تک کھینچے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ امید نصیب اللہ نے اس حوالے سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے بھی جمع کیے ہیں کہ جدا فیڈر نکلے، اور عوام کی تعاون بھی ہو کہ جو غیر قانونی چلا رہے ہیں، گھر والی کنیکشن یا ٹو ویل یا چکی وغیرہ یا دکانیں ہیں،
अगर उनको भी बिलिंग में लाएं तो हमें कई मुश्किलात हमारे हल हो जाएगी। जिस तरह अभी एड्रोड चेयरमैन सुबेदार मरीज साहब बता रहे थे कि ग्रिड स्टेशन में जो है ना 26 या उससे कम बिजली की जो है ना सप्लाई है, कैपेसिटी मतलब कि कम है, तो सर ये कैपेसिटी किस तरह पूरी की जा सकती है? जनाब नसरुल्लाह साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप सीनियर हैं यहाँ वाबडा में मौजूद। अपग्रेडेशन इसकी होती है 10-13 का अपग्रेडेशन होती है 20-26 वो आएगी इंशाल्लाह। फिर ये जो सप्लाई का मामला है, जैसे चेयरमैन बता रहा था, वो उसकी कैपेसिटी 400 एम्पेयर है। बकाया हमारे फीडरों का ओवर लोड होने 600 टोटल उसका लोड है, 600 तकरीबन उसकी बर्दाश्त है। जब डबल होएगी वो 1200 तक जाएगी, तो फीडरों का मामला हल हो जाएगा। दूसरे कोलू के इलीगल सबसे ज़्यादा जो मसला है इलीगल का, जो डायरेक्ट ट्यूबवेल चल रहे हैं, लोग चला रहे हैं, उनकी अपरूटिंग हो जाएगी, उससे भी लोड कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर पर्पस पे जो लोग चला रहे हैं उसको काटने से, उसके ट्रांसफार्मर उठाने से भी लोड कम हो जाएगा। तीसरा नंबर ये है कि रेगुलर करना। घरेलू कनेक्शन है, नवाब साहब ने बहुत से खिली विलेजेस को इलेक्ट्रीफाइड किया है। अभी मीर नसीबुल्लाह मरी बहुत से सारे स्कीम उसके चल रहे हैं, ऑनगोइंग चल रहे हैं। उनको भी अगर हम रेगुलर करें, आवाम साथ दे, तो वो जब रेगुलर होंगे तो हर कंज्यूमर का बिल आना जब शुरू हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा सिस्टम कट ऑफ करेगा। पहले उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो चला रहा है, उसका कोई बिल नहीं है। जब उसका बिल आना शुरू हो जाएगा, वो अपना मीटर और अपना लोड ऑटोमेटिक कम करेगा। तो आवाम से गुजारिश है, स्पेशली हमारा जो सिटी फीडर है, इलीगली तौर पर लोगों ने खींचा है, जिसका हक नहीं बन रहा था खींचा है, जिससे हमें हमारे स्टाफ को भी सेफ्टी के बड़े मुश्किलात हैं। ऊपर 33 मेमन जा रही है, नीचे से कुछ लोगों ने उसके नीचे 11 kV सिटी डाल दी है। तो कभी 33 का अगर तार गिर जाए या कोई मसला हो जाए, उससे भी हमारे बड़े एक्सीडेंट का ख़तरा होता है। ठीक है, तो गुजारिश है कि गैर कानूनी लाइनें ख़त्म हो जाएं, इससे बिजली का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। हालिया दिनों में डिप्टी कमिश्नर एक्सियन लोरालाई मीर बंगुल खान मरी की ज़ेर सदारत एक बहुत बड़ा इजलास हुआ, शायद उसमें आप थे या नहीं थे। ये फैसला हुआ कि भाई लोड इतना ज़्यादा है, ऑपरेशन करेंगे। जो डिप्टी कमिश्नर और मीर नसीबुल्लाह मरी का जो नुमाइंदा था मीर तौर खान मरी, उसने कहा फ़िलहाल ऑपरेशन को पोस्टपोन करते हैं, कोई और हल निकालते हैं। हल क्या निकला कि हर रात एक पोर्शन काट दिया जाता है। बुगड़ी है, सुक्का दफ है, बागा दफ है, तिरखा दफ है, ये 4 जो हमारे सिटी पर एक्स्ट्रा बर्डन भी हैं, इलीगल भी हैं, वो हमने शुरू किया। 1 महीना तो मुसलसल हमारा सप्लाई समूथ चला। अभी लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कभी वाबड़ा वाले काटते हैं तो ये लोग खुद लगा लेते हैं। तो हमारी इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश है कि जो बातें उन्होंने 23 दिसंबर को मीटिंग में हुई, हमें कोई ख़ास प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है जो डीसी साहब ने हमारे साथ ज़बान की थी। तो वाबड़ा के एहलकारों का यही है, काट के आ जाते हैं, बाद में तो न कोई सिक्योरिटी है न कोई किस्सा है। तो आवाम से भी ये गुजारिश है कि जो एक फ़ैसला हुआ डीसी साहब की सदारत में और मीर बंगुल खान मरी की सदारत में, उस पर कायम रहें। ये जो 3 महीने हैं, जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें एक्स्ट्रा लोड आ जाती है गीज़र्स का, जो वाबड़ा के सिस्टम पर बोझ है। कभी तार टूट रहा है, कभी हमारे केबल बर्स्ट हो रहे हैं वाबड़ा ग्रिड से, कभी क्या ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। अभी हालिया दिनों में मेन सिटी का ट्रांसफार्मर जला, वो ऐसे नहीं जलता, हालांकि वाबड़ा का मीर माबा खान मरी ने दिया है बेहतरीन ट्रांसफार्मर। क्या किले वालों ने उस पर एक्स्ट्रा लोड डाला है और लोड की वजह से वो बर्नट हुआ, बना मेरे ख्याल में 2 घंटे नहीं चला, फिर बर्नट हो गया। तो इन्हीं चीज़ों के लिए गुजारिश करते हैं इंतज़ामिया से, आप लोगों के तवस्सुत से आगाही मुहिम चलाएं। इधर लोगों ने ये हालत शुरू की, बल्ब दिन को जल रहा, ओ भाई मेरे दिन को आप बल्ब क्यों जलाते हैं?
ना आपको फ़ायदा, महकमे पर लोड है। खुदारा इस बल्ब को, गीज़र को, एक्स्ट्रा जो हीटर है उसको, इन चीज़ों को ऑफ कर लें। आपको आपके वापडा के लिए भी बेहतर है और आपके बच्चों के लिए भी वो चीज़ नुकसानदेह है। कल को वो शॉर्ट सर्किट बन जाती है, सिस्टम ही जल सकता है। सही है सर, आपका बात का है। जी, लैंड सुपरिटेंडेंट बंगर खान साहब, सर आपसे सवाल है। सर, आपको ज़िंदगी और मौत की जंग बतौर लैंडमैन कितने बार सामना? जी, ज़िंदगी और मौत के दौरान बिल्कुल हर वक्त दिन रात हमारे जो है 3 शिफ्ट खासकर होते हैं। फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर नाइट शिफ्ट। तो हमारे लाइनमैन अपना जो है ना सेफ्टी वो करके, फिर भी कभी कभार मतलब ये होता है कि इंसान जो है ना, ये जो हमारे सिटी का वो है, लोग दूसरे जो है ना फीडरों में वो चला लेते हैं, उसमें फ्यूज़ लगे हुए होते हैं। ज़िंदगी और मौत के दरमियान में वो जो है ना हर वक्त वो उसमें मतलब वो परेशानी होता रहता है। और कई इस तरह हादसा पेश भी आए हैं बारकान में, कोलू में, रकनी में। बारकान में जमाल खान का वालिद कमाल खान यहाँ कोलू का जो है ना वो रिहायशी था, तो एक फीडर बंद किया हुआ था, दूसरा फीडर उसमें मतलब कन्वर्ट था, तो उसमें उसने हाथ टच करते ही तो सेफ्टी बंद भी उसमें वो टूट गया। और दस्ताना तो 11,000 वो जो है ना उसमें काबिल कबूल भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो 420 या 240 पे मतलब वो होता है। तो 11,000 में वो जो है ना वो भी बरत हो गया, उसी टाइम नीचे गिर गया, नीचे गिरने से उधर ही जो है ना वो शहीद हो गया। ठीक है सर, आप इलाके सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं। बायसती मोतबरीन, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इलाके में बिल अदा करने वाले सार्फिन की तादाद कितनी है? कितने लोग मुफ्त बिजली से पैदा उठा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इलाके में बिल अदा करने वाले या बिल देने वाले जो ज़मींदारान हैं, वो तकरीबन सारे दिन के जो अपने मीटर लगे हुए हैं वो सारे अदा कर रहे हैं। और उनमें ऐसे लोग भी हैं जो खामखा, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इलाके में होते हैं इस तरह के लोग जो बिल भी अदा नहीं करते। उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हम बिजली भी चलाते रहें और बिल भी ना अदा करें। जब वापडा वाले जाते हैं वो कहते हैं जी आज नहीं कल हम बिजली, मैं खामखा बिल अदा करूँगा, परसों करूँगा। फिर इस तरह करते करते खामखा ये भी फिर मजबूर हो जाते हैं, फिर ये भी अपना वो काट लेते हैं। नहीं तो हमारे साथ हमारे वापडा वाले हमारे इलाके में बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं और हम ज़मींदारान भी सारे इनके साथ ताउन कर रहे हैं एक दूसरे से। हमारा जो एक बिजली का सिलसिला चल रहा है वो हमारा एक दूसरे से बहुत अच्छे ताउन से चल रहा है, एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं हम। लोड है किधर? सर, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके इलाके में जो बिजली की कनेक्शन है गैर कानूनी कनेक्शन से, वो सूरत हाल, और दूसरा ये कि आप कितना परेशान है बिजली के आने जाने से, आमदोरफ्त पर कितना परेशान है आप? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने आवाम की नुमाइंदगी के लिए बुलाया, और दूसरा मैं वापडा वालों का सलाम पेश करता हूँ। इन लोगों की कुर्बानी है, आंधी तूफान, फिर भी अपनी जान पे खेल कर लोगों के घरों में रोशनी करते हैं। और आपके सवाल का जवाब, आपने जो सवाल पूछा है कि कितने परेशान हैं, बिल्कुल इससे तो हम लोग जलील हैं। 10 मिनट के लिए आते हैं, 10 मिनट के लिए जाते हैं। ये भी वापडा वालों को कोई कसूर नहीं है, वैसे सड़क के कनेक्शन लगे हुए हैं और सरकारी तौर पे लगे हुए हैं, कुंडी लगे हुए हैं, जिसके लिए पूरी आवाम जले, हम जले, वापडा वाले जले। जी सर, मोहम्मद जान साहब, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर। सर, वापडा अफसरान की शिकायत है कि गैर कानूनी कनेक्शन से हम तंग आ गए हैं। इस बारे में इनकी आप क्या मदद कर सकते हैं और आवाम को कैसे बताया जा सकता है कि ये खयानत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसी तरह की प्रोग्राम होने चाहिए महकमे और आवाम के दरमियान, एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। जैसे आज हमारे वापडा के अफसरान बैठे हुए हैं और हमारे मोअज़्ज़ीन मलिक साहिबान और दूसरे हमारे आप लोग आए हुए हैं। ये हर महकमे में आवाम और अफसरान के दरमियान में होना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि भाई आवाम की परेशानी क्या है और महकमे की परेशानी क्या है। सबसे पहले तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ, मैं अपने मरी कॉलोनी की नुमाइंदगी करके आज ये बात कहना चाहता हूँ। हमारे वापडा के अफसरान साहबान बैठे हुए हैं
और ये बात मैं MP जनाब म्यूनसिपला साहब की मशहूर भी करना चाहता हूँ, और दूसरे हमारे यहाँ जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं, हमारे मरी कॉलोनी की ट्रांसफार्मर तकरीबन ये चौथी बार है ये जल रहा है। तो हमने कोशिश की अपने आवाम की जितना भी हो सके हमने चंदा या मतलब पैसे इकट्ठे करके हमने 3 बार तो पहले या 4 बार इसी तरह बनाया, लेकिन अभी भी हम अंधेरे में डूबे हुए हैं। दूसरी रही बात बिजली की, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसमें मैं कसूरवार आवाम को भी करता हूँ कि बिल नहीं है। यकीन जानिए, जैसे वांगड़ साहब ने कहा कि भाई बिल्कुल वावड़ा वाले जो हैं बहुत सारी परेशानियों से गुजरते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे हवा हो, ये खंबे पे छड़े हुए हैं, ये कुर्बानियाँ दे रही हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र हैं, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। और आवाम से भी मैं यही गुजारिश करता हूँ, बराए करम आपसे हो सके ये सरकारी कर्ज़ा है, हमें अदा करना पड़ता है, हमें अदा करना पड़ेगा। और वो हमारे वावड़ा ऑफिसरान से मैं यही गुजारिश करता हूँ, जैसे सिटी के एरिया है, रूरल की एरिया है, ये आपके नज़दीक पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ हमारी कॉलोनी है, आपकी कोई भी आप किसी को बेच के अपने लैंडमैन को, जिसने भी बिल जमा नहीं किया आप उनका तार काट दें, हम भी आपके साथ ताउन करते हैं। बाकी आप इन नज़दीकी एरिया को दूर की उसे अलग कर दें ताकि बिजली आ जाए। वह मैं मानता हूँ कि दूर की एरिया जैसे गिरसनी हो गया, सारे हमारे आवाम है, हम कहते हैं जहाँ भी हो जाए सबको बिजली की सहूलत मिले ताकि स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठाए। आजकल आपको पता है कि स्कूल्स वगैरह बंद हैं, तो ये मोबाइल या नेट के ज़रिए स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं कहता हूँ जहाँ भी बिजली की सहूलत हो हम खुश हैं, लेकिन मैं ऑफिसरान साहबान से यही गुजारिश करता हूँ जो नज़दीकी एरिया हैं इनको बिजली मुहैया किया जाए। अगर इनमें से किसी ने बिल जमा नहीं किया हुआ है तो आप बेशक इनका कनेक्शन काट सकते हैं। चेयरमैन साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि चूँकि आप मुख्तलिफ टेन्योर में चेयरमैन रह चुके हैं और बतौर एक सहाफ़ी और बतौर एक अवामी नुमाइंदा मैं यहाँ अक्सर देखता रहता हूँ कि आपके परफॉर्मेंस पे अब आज तक सवाल नहीं हुआ, आप बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। आपके इस इदारे के अंदर कितने वैकेंट पोस्ट हैं खाली जो अब आज तक एडवर्टाइज़ नहीं हुए? आप चाहते हैं कि वो एडवर्टाइज़ हो जाए, लोग आ जाएँ यहाँ नौकरी हासिल करें, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो आप गैर कानूनी कनेक्शन काटने जाते हैं, आपको क्या मुश्किलात है? आज तक आपने कितने ऑपरेशन किए और उसमें आप परेशान हुए, और कौन ऐसे लोग हैं जो आपको रुकावट डाल रहे हैं? पहला सवाल आपका नियम के हवाले से था, तो हम लोग अपनी पोस्टों के हवाले से तो हम लोगों की वफाकी महकमा है, ये पोस्टें हमारे कोयटे से होती हैं, और जो पोस्टें हर यानी 8-10 साल के बाद वीकेंड पोस्टें कवर हो जाती हैं। इस टाइम हमारे पास कोलू में वीकेंड पोस्ट नहीं है। और दूसरा, जो बिजली के हवाले से आपने बताया कि गैर कानूनी कनेक्शन हम काटने जाते हैं या तेरी हैं, में कई मुश्किलातें हुई हैं और हमने FIR भी की हैं और अदालतों में वो केस भी चली है, लेकिन हमारे अदालतों से वो बरी हो गए। लेकिन वो भी हमारे अवाम है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी को ऐसी तकलीफ़ हो, लेकिन अगर लोग हमें मजबूर करते हैं तो मजबूरी की हालत में हम FIR भी कर लेते हैं। और जो इस टाइम इंतज़ामिया या पुलिस या जो लेवीज़, हमारे इलाके में लेवीज़ और पुलिस की रोल इतना नहीं है। अगर हमें FC मुहैया हो तो हम गैर कानूनी कनेक्शन भी ख़त्म कर सकते हैं और हम वाबड़ा को एक अदारे को बेहतरी की तरफ भी ले जा सकते हैं। सर मोहम्मद जान साहब, आप कोलू के गिरद नवा से वाकिफ़ हैं, आपके इलाके में बिजली की क्या टाइमिंग है? हाँ जी, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो इसमें कोई टाइमिंग का भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बिजली का हाल ये है, इसमें कोई टाइमिंग का मैं खास कंफर्म नहीं है। ओवरलोड होने की वजह से ओवरलोड किसी तरह की ये अवाम और हमारे अफसरान के सामने ये चीज़ होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। तो शिकायत मेरा तो कोई नहीं है, बहरहाल मैं रिक्वेस्ट है मेरा कि सिटिया और रूरल की एरिया जितने भी हैं, आप जो भी गलत कनेक्शन लगे हुए हैं, जो बिल अदा नहीं है, उनको आप काट दें, लिहाजा इनको थोड़ा बिजली मुहैया किया जाए।
جی سر نصراللہ خان صاحب، بجلی کی آمدن کتنی لولائی گریڈ سے ہے اور یہاں کتنی خرچ ہو رہی ہے کیپیٹی جگہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال کی بجلی کے بارے میں۔ مختلف اوقات میں کبھی کبھار 12 گھنٹے جب ہائر اتھارٹی کی طرف سے الاؤڈ ہوتی ہے تو ہمارے سٹی فیڈر 30 لاکھ یونٹ چلتا تھا۔ جب منسٹر نصیب اللہ خان مری نے ٹائمنگ بڑھایا تھا 18 گھنٹے کیا تھا، اس سے تقریباً 35 لاکھ یونٹ چلتے تھے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بجلی کے ٹائمنگ پر کہ ٹائمنگ کیا ہے۔ اگر گریڈ سے 10 گھنٹے ہیں تو اس حساب سے چلتے ہیں، اگر زیادہ ٹائم ملتا ہے تو اس حساب سے چلتی ہے، لیکن ریکوری اس حساب سے ہمیں نہیں ملتی۔ لوگوں پر ڈیوز بھی کافی ہیں، کنیکشن ڈسکنیکٹ کرتے ہیں تو وہ اپنا کنیکشن کوشش تو کرتا ہے خود لگا لیتا ہے، اگر خود نہیں لگا سکا، کوئی وابڈا نے اس کا ٹرانسفارمر ریموو کیا یا کوئی مین جمپرز اتارے تو وہ منت سماجت کر کے کس انسٹالمنٹ کی صورت میں اپنا پیمنٹ جمع کر لیتا ہے، بھی فل پیمنٹ نہیں کرتا ہے انسٹالمنٹ کی صورت میں۔ سر کتنا سالانہ؟ بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا ہے آپ اور عوام اور ہم نے یہ خاص کر یہ جرگہ منعقد کی کہ ہم بجلی کی صورتحال کو دیکھیں۔ ایک وابڈا لائن مین اپنا سٹک اٹھا کے نکلتا ہے اور زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے یا تو اس کی لاش آتی ہے یا وہ معذور بن کر واپس آتا ہے یا پھر وہ جو ہے نا بجلی کو دن میں مختلف اوقات پر، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، بارش ہو، یہ لوگ نکلتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ ساتھ دوسرے وہ لوگ جو مکمل بل ادا کر رہے ہیں، بالکل اپنی ہر ماہ کا مکمل جو ان کی پیکیج ہوتی ہے بل کی وہ دے دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایسے بھی لوگ ہیں وہ لوگ بجلی خرچ کرتے ہیں لیکن وہ بجلی گناہ ہے، خیانت ہے، اسی خیانت والے بجلی کو استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ مختلف جو ہے نا چیزوں میں استعمال کر کے اسی کو بھی اپنے لیے جو ہے نا وہ اخلاقی اور شرعی لحاظ سے وہ جرم دار ہو رہے ہیں۔ ہمارا یہ مقصد یہ تھا کہ ہم اس چیز کو آگاہ کریں، عوام تک پہنچائیں، عوام ایک یعنی اخلاقی طور پر ان چیزوں پر خیال رکھے۔ جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب نے، نصراللہ خان مری صاحب نے، ملک صاحب نے، یہ جو سپورٹس جنرل سیکرٹری محمد جان مری صاحب نے، مختلف لوگوں نے یہ رائے دیا ہے کہ لوگ عوام احتیاط کرے، بجلی والے آپ کا ساتھ دیں گے، وابڈا آپ کا ساتھ دے گا۔ تو انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ پروگرام بھی جلد ایجوکیشن کے حوالے سے منعقد ہوگی۔ آپ ہمیں رائے دیں، ہمیں تجاویز دیں، کیا ہم لوگ یہ پروگرام میں کیا کمی ہے، کیا کوتاہیاں، کیا سوالات ہیں، ہم اسی تیاری کے ساتھ آپ تک پھر پہنچائیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ اور عوام۔ بہت شکریہ۔